स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द क्वीन ऑफ साइंस में। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर ऑफ योर क्लास 9th मैथमेटिक्स एंड this is your chapter number 15 from your NCERT book, and in your NCERT book this is the last chapter. Okay, and the name of the chapter is what? Probability. Actually this name is empirical probability, but for our convenience we say it is probability. Okay, before we discuss about the definition of probability, first of all we are going to look for some statements. What are these statements? It will probably rain today. By this statement we can guess only that today may be rain or not. It is not confirmed. It may be and may not be. I doubt that he will pass the test. This statement is also not very clear regarding the pass and fail in the test. Most probably Nandita will stand first in the annual examination. This is the most probability, not sure that Nandita will stand first in the annual examination. Okay, this is only probability. Probability means may or may not be. Nandita may be in the first in annual examination and may not be. Okay. Fourth is chances are high that the prices of diesel will go up. This is the chance only. कि maybe the price of diesel will go up. Maybe it not go up. There is a 50-50 chance of India winning a toss in today match. Means for the match our team India is going to play, maybe he win the toss. 50-50 chance means maybe India win the toss, maybe other team win the toss. So by all these 5 statements what we can calculate? बहुत ही ईजिली आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ये कह सकते हैं कि जो भी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं वो कोई भी चीज़ें श्योर नहीं है. ऑल दीज थिंग्स आर नॉट श्योर. ओनली दीज थिंग्स, फॉर दीज थिंग यू कैन से दिस विल मे बी और मे नॉट बी. ये चीज़ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है. ठीक है. So this type of situation is known as probability. For happening something, for the chance of anything is called probability. Okay? In the probability, some uncertain elements we will found always. If any statement is related to the probability, you will find some certain uncertain elements in the given statement. And what is the uncertain elements? Probably, doubt, most probably, chance. These are the elements, these are the keywords which occurs in the statement. Then that statement will become a probable situation, not sure. Okay, here two definitions are coming. First is trial and second is event. So first of all we want to discuss what is the trial. Okay, like if you are going to perform any activity, just an example I want to say you that take a coin and toss it. So
टू टॉस द कॉइन इज कॉल्ड ट्रायल। आपने कॉइन लिया और आपने उसको क्या किया, टॉस किया, तो जो आपने कॉइन को टॉस किया है दैट इज कॉल्ड ट्रायल। ओके, किसी एक्सपेरिमेंट का परफॉर्म करना, दैट इज कॉल्ड ट्रायल। एंड व्हाट इज द इवेंट? जब आपने कॉइन को टॉस किया यू विल गेट हेड और टेल। Again one time you toss you will get head or tail, again one time you toss you will get head or tail। ठीक है, आपने 8-10 बार परफॉर्म किया एंड समटाइम्स यू गेट हेड एंड समटाइम्स यू गेट टेल। ओके, सो दीज ऑल आउटकम्स जो आपको रिजल्ट में मिल रहा है, जैसे फर्स्ट टाइम आपने टॉस किया हेड मिला, सेकेंड टाइम आपने टॉस किया अगेन हेड मिला, थर्ड टाइम आपने टॉस किया टेल मिला, तो दीज ऑल आर आउटकम्स इज कॉल्ड इवेंट्स। इनको हम क्या कहते हैं, इवेंट्स कहते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर। एंड नाउ the definition for probability, actually this probability is known as what, empirical probability, but for our convenience we will always say it probability। ठीक है, what is the definition? What we directly observe as the outcome of our trials is called experimental or empirical probability। मतलब जो हम ट्रायल करते हैं उनके जो आउटकम्स निकल करके आते हैं दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल और एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। एक्सपेरिमेंटल और एम्पेरिकल वर्ड यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि ये काम जब हम करेंगे, कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तभी होगा, अपने आप से ये चीज़ होती नहीं दिखेगी। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस द फॉर्मूला फॉर आवर एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। This is the formula for our empirical probability. The empirical probability, it is represented as P of E। P of E, P of E को हम क्या पढ़ते हैं, probability of an event। okay, probability of an event, P for probability, E for event। of an event, E happening is given by P of E, probability of event, is equals to number of trials in which the event happened upon में total number of trials। ठीक है, तो इस चीज़ को, ये जो नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड, इस चीज़ को हम बोलते हैं फेवरेबल आउटकम, और द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स को हम कहते हैं टोटल आउटकम। ठीक है, फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम से सेंस क्या है कि जब हम कभी भी किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो जो हमारा स्टेटमेंट है उसके फेवर में जो आउटकम्स आते हैं, फॉर एग्जांपल हमने एक कॉइन को टॉस किया और हमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, तो वो जो हेड आएगा दैट इज़ फेवरेबल आउटकम। और जितनी चीज़ें आ सकती हैं, दो चीज़ें आ सकती हैं, एक हेड और एक टेल, these are the total outcomes। ठीक है, now come to some examples like this toss of coin। you can take a example for a dice। you know the dice, there are 6 numbers, the cubical shape is this, and there are 6 number 1 2 3 4 5 6। when we throw the dice any number can come, 1 2 3 4 5 6। okay, and here the total outcome is what, 6, because in all the 6 faces one different number is written, that's why 6 is the total outcome। and if you are going to perform this experiment and you want to come a even number, so here how many even numbers are there, 2 4 and 6, only these 3 numbers are even number, that's why in your favor there are 3 outcomes, 2 4 and 6, so the favorable outcome is what, 3, because 3 numbers for your favor, and total outcome is 6, 1 2 3 4 5 6, these all the total outcomes। okay, so you have to put the value this formula and you will get the
probability for your event. Okay, now we are going to discuss some key points here. First key point is the probability of each event lies between 0 and 1. किसी भी चीज़ की probability 0 और 1 के बीच में लाई करती है. क्लियर है? The sum of all probability is 1. Sum of all probability is 1 meaning अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है तो उसमें डिफरेंट अलग अलग चीज़ों के आने के लिए सारी प्रोबेबिलिटीज़ निकालिए और फिर जब उन सब का हम सम करेंगे तो दैट विल बिकम इक्वल्स टू 1. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, डाइस को हमने थ्रो किया. डाइस में दो तरीके के नंबर होते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर्स. पहले हमने इवन नंबर्स को आने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर ली, फिर हमने ऑड नंबर्स के आने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर ली. अब जब हम इनका सम करेंगे दोनों का तो दिस इज इक्वल्स टू 1. तो ये कितने के इक्वल होगा? 1 के. ओके, नेक्स्ट थिंग, टू हैपनिंग एनीथिंग is represented as P of E. Probability for happening anything is P of E. But for not happening, किसी चीज़ के होने की probability P of E और किसी चीज़ के ना होने की probability P of E dash. इसे हम क्या कहते हैं? E dash. P of E dash किसी चीज़ के ना होने की probability. एंड किसी चीज़ के होने और किसी चीज़ के ना होने की probability का सम होता है 1. For the happening something एंड दिस इज़ फॉर नॉट हैपनिंग समथिंग. इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम होता है 1. जैसे मान लीजिए कि आपने कॉइन टॉस किया, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड? हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी फॉर नॉट कमिंग हेड? हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे हम P ऑफ E और P ऑफ E डैश को उस तरीके से यूज करेंगे. प्रोबेबिलिटी नेवर बी निगेटिव. प्रोबेबिलिटी कभी निगेटिव नहीं हो सकती. अगर कोई आपसे कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ -2 तो तुम कह दो फालतू बकवास है, ये तो कभी हो ही नहीं सकती निगेटिव. एंड नॉट ग्रेटर देन 1, और कभी भी किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं हो सकती. अगर कोई कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ 5/2, 5/2 मीन्स 2.5 और 2.5 1 से बड़ा नंबर है, तो ये भी चीज़ गलत है. ऐसा हो नहीं सकता. प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती. दैट्स वाई हियर इट इज़ रिटन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, लेस देन और इक्वल्स टू 1. मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, 1 हो सकती है, 1 से छोटी हो सकती है, लेकिन न 0 से छोटी होगी न 1 से बड़ी होगी. ठीक है, तो यहाँ पे पहले हमने बता दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1. जो इवेंट, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है. तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है? क्या किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 भी हो सकती है? तो आंसर है यस, बिल्कुल हो सकती है. नाउ कम टू द एग्जाम्पल फॉर द प्रोबेबिलिटी बिकम्स 0 एंड फॉर द प्रोबेबिलिटी बिकम्स 1. लाइक देयर इज एन इवेंट दैट सन सेट इन द वेस्ट. सनसेट इन द वेस्ट मतलब सूरज किधर डूबता है? वेस्ट में. ये इवेंट आपका ट्रू है या फॉल्स? ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है या फॉल्स? ट्रू स्टेटमेंट है. नाउ सेकेंड थिंग, 3 कम्स आफ्टर 2 इन नेचुरल नंबर्स. जो हमारे पास नेचुरल नंबर्स होते हैं उनमें जो 3 है वो 2 के बाद आता है. ये इवेंट ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है. ठीक है, एज वेल एज और भी जो कोई इवेंट्स हों, ऐसे इवेंट्स जो ट्रू हों या श्योर हों कि ये होगा ही होगा, इसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं है. जैसे सन राइजेज इन ईस्ट, सूरज किधर उगेगा? ईस्ट में. तो ये एक ट्रू इवेंट है, श्योर इवेंट है, तो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी होगी 1. ठीक है, जितने भी ट्रू या श्योर इवेंट्स होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है. एंड नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज लाइक you can take your name also
and any other name, like here I will discuss a name Nandita is a girl. Okay, so Nandita will eat the sun. दिस इज द स्टेटमेंट. नंदिता जो है वो सूरज को खा जाएगी. क्या ये पॉसिबल है? नो, दिस इज इम्पॉसिबल. तो इस इवेंट को हम कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट. ओके, सन राइजेज इन नॉर्थ, ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल इवेंट है. तो जो इम्पॉसिबल इवेंट्स होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0. यहाँ पे मैंने लिख दिया है आपके लिए कि फॉर द श्योर इवेंट्स प्रोबेबिलिटी इज 1 एंड फॉर इम्पॉसिबल इवेंट्स प्रोबेबिलिटी इज 0. एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको ये बात क्लियर भी हो गई होगी. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 3 थिंग्स: कॉइन, डाइस एंड एट द लास्ट डेक कार्ड्स. इन तीनों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉइन. इफ देयर आर वन कॉइन ओनली, इफ देयर इज अ वन कॉइन, एंड जब आप उस कॉइन को टॉस करेंगे देन या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. तो आपके फेवर में सिर्फ एक आउटकम होगा, हेड और टेल. बट यहाँ पे टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 2. क्लियर? अगर हमने कोई 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस किया, इफ यू टॉस 2 कॉइन एट अ टाइम, तो हो सकता है पहले कॉइन पे हेड और दूसरे पे टेल आए. फर्स्ट टेल एंड सेकेंड हेड, मे बी बोथ हेड, मे बी बोथ टेल. So how many outcomes are there? 1, 2, 3, 4. So there are total 4 outcomes. There are total 4 outcomes. ठीक है? So ये टोटल आउटकम्स हमेशा फॉर्मूले में नीचे रहता है, डिनोमिनेटर में. और अब हमारे फेवरेबल आउटकम क्या हो सकते हैं? जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, फॉर दिस मैं आपको एक क्वेश्चन बोल के बताता हूँ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग टू हेड when we toss 2 coin at a time. ठीक है, 2 कॉइन को अगर हम एक साथ टॉस करें देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 2 हेड. तो यहाँ पे ओवरऑल 4 आउटकम्स बने. इन चारों आउटकम में 2 हेड कहाँ पे है? ये रहा. तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि हमारे फेवर में सिर्फ एक आउटकम है और टोटल 4 आउटकम्स हैं. तो फेवरेबल आउटकम की जगह पे 1 और टोटल आउटकम की जगह पे 4. योर आंसर इज 1/4. एज वेल एज अदर क्वेश्चंस विल फ्रेम. जब क्वेश्चंस फ्रेम होंगे वहाँ पे हम लोग इसकी बात करेंगे. व्हेन वी हैव 3 कॉइन्स एंड वी टॉस इट टुगेदर, मे बी ऑल 3 आर हेड. फर्स्ट हेड, सेकेंड हेड एंड थर्ड में टेल. मे बी फर्स्ट हेड एंड सेकेंड एंड थर्ड टेल. मे बी ऑल टेल. First tail, second tail and last one is head. First tail, last, second and third is head. First tail, second head and third tail. First head, second tail and third head. So how many total events are happening there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So total outcome is here 8. टोटल आउटकम यहाँ पे कितने हो गए? 8 हो गए. अब इन्हीं आउटकम में से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि इफ़ वी टॉस 3 कॉइन्स टुगेदर देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 2 हेड्स. 2 हेड्स के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो अब इसमें देखिए कि 2 हेड्स किन किन इवेंट्स में है. जैसे यहाँ पे 2 हेड्स है, एक हो गया ये. यहाँ पे 2 हेड्स है, एक ये हो गया 2. यहाँ पे 2 हेड्स है, एक ये हो गया 3. सो इन योर फेवर देयर आर 3 इवेंट्स. 3 इवेंट्स यहाँ पे आपके फेवर में है, 1, 2, 3. एंड हाउ मेनी टोटल इवेंट्स? 8. सो प्रोबेबिलिटी इज फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम. फेवरेबल आउटकम इज हियर 3 एंड टोटल आउटकम इज 8. सो योर आंसर इज 3/8. आई थिंक इट इज क्लियर टू यू. नाउ these 2 words are very important in the chapter of probability. Either in this is in your class 9th, 10th, 11th, 12th, in any class. This chapter is in up to your class 12th. So these 2 words are very important. At least means कम से कम.
एंड एट मोस्ट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। वी हैव टू अप्लाई दीज टू वर्ड्स at the time of solving question when these words comes in your question. Now come to dice. This is the dice, and how many outcomes are there? 1 2 3 4 5 6. So total 6 outcomes are there. And जैसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उस अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको फेवरेबल आउटकम मिल जाएंगे. लाइक what is the probability when we throw a die, what is the probability for coming even numbers? तो कितने इवन नंबर्स यहाँ पे हैं? 2 4 6. So 3 even numbers are there. So your favorable outcome is 3 and total outcome is 6. Your answer is 3/6. What is the probability of numbers coming greater than 5? When we throw a dice, what is the probability of number coming greater than 5? तो greater than 5 यहाँ पे कितने numbers हैं? सिर्फ एक number है 6. So in your favor there is one outcome, and how many total outcomes are there? 6. So your answer is 1/6. I think slowly आपको questions के करने की भी बातें समझ में आ रही होंगी. Now come to for two dice. When we throw a two dice together, in the first die from 1 to 6 number are there, and in the second die from 1 to 6 number are there. These are pairs occur. जब हम दो डाइस थ्रो करेंगे दोनों डाई पे कोई एक एक नंबर आएगा. मे बी बोथ आर 1 1, मे बी 1 2, मे बी 1 3, मे बी 1 4, मे बी 1 5, मे बी 1 6 and so on. In all these any one is there, any one, क्योंकि एक नंबर आपका फर्स्ट डाई पे दिखेगा और एक नंबर आपका सेकंड डाई पे. जैसे मान लीजिए आपने दोनों डाई को थ्रो किया तो एक पे आपको 5 दिखा, एक पे 4. सो दिस इज योर आउटकम. ओके, एंड हाउ मेनी टोटल आर देयर? 36. दीज आर टोटल 36 आउटकम्स. इन द केस ऑफ टू डाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज 36. मैं इन केसेस को यहाँ पे आपको क्यों बता रहा हूँ? द पर्पज इज वॉट? पर्पज इज कि आपको टोटल आउटकम्स किन केसेस में क्या होते हैं ये पता चल जाए, ठीक है. और ये 2 कॉइन का, 3 कॉइन का, ये सब बनाना आपको आना चाहिए. 2 डाइस का ये भी आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है. हियर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6. दीज आर कॉल्ड डबलेट्स. क्या कहते हैं इनको हम? डबलेट्स. बाय द वे योर क्वेश्चन इज when we throw a two dice together, what is the probability of coming doublets? तो यहाँ पे टोटल आउटकम तो 36 है. आपका फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम. तो टोटल आउटकम की प्लेस पे तो आ गया 36. अब फेवरेबल आउटकम क्या चाहिए? फेवर क्या है आपका? फेवरेबल में क्या है? डबलेट्स. देखिए कितने डबलेट्स हैं? 1 2 3 4 5 6. 6 डबलेट्स आर देयर. So in your favor how many outcomes are here? 6 outcomes. So your answer is 6 upon 36. And we will always simplify also. अगर हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे. Now come to the next one. Next is deck card. Next is our deck card. How many total cards are here? 52. लोग ताश कहते हैं इसको. 52. These 52 is categorized in two part. 26 red colored and 26 black colored. Okay. These red color is also categorized in two parts. 13 is of the heart and 13 is of the diamond. And this black color is also categorized in two parts. 13 as a spade and 13 as a club. Okay, so there are over 4 suits, and in each suit there are 13 cards. 13 13 13 13. So total 52. Okay, what is these 13 cards? ये 13 cards हैं कौन कौन से? King, Queen, Jack, Ace, then 10 9 8 7 6 5 4 3 2.
एक बार मैं आपको इसे कैसे हिंदी में रीड करते हैं बता देता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा आपको सुन के। बादशाह, बेगम, गुलाम, इक्का, दहला, नहला, अट्ठा, सत्ता, छक्की, पंजी, चौकी, तिक्की, दुक्की। इंटरेस्टिंग है, बहुत से लोग खेलते हैं। आपको इसे अपनी पढ़ाई के पर्पज से याद रखना है। किंग, क्वीन एंड जैक, these three cards are called faced card because in these card faces are made. Ace, this is neither face card nor number card, इस पे ना तो कोई फेस बना होगा ना कोई नंबर लिखा होगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ये सब क्या हैं, हमारे नंबर कार्ड्स हैं। यही जैसे ये हार्ट के नीचे मैंने इन सारे कार्ड्स के नाम लिखे हैं, एज वेल एज दीज ऑल 13 कार्ड्स इन डायमंड, दीज ऑल 13 कार्ड्स इन स्पेड, दीज ऑल 13 कार्ड्स इन क्लब। ओके, the question is how many red kings are there? How many red kings are there? Red kings in one king in heart and one king in diamond, so there are total 2 red kings here. Total outcome is 52 because how many cards are there? 52 cards, so here total outcome is our 52. Okay, and now how many face card are there? 3 plus 3 plus 3 plus 3, overall 12 face card. How many number cards are there? 9 plus 9 plus 9 plus 9, 36 number cards are there. Okay, different variety of the questions can be framed from the deck card. Just I want to frame one question, listen carefully. What is the probability of black colored face card? What is the probability of black colored face card? ये तो क्लियर है कि टोटल आउटकम इज 52। ब्लैक कलर्ड फेस कार्ड, ब्लैक के ये 2 सूट्स हैं आपके, 3 इसमें फेस कार्ड होंगे किंग क्वीन जैक, और 3 इसमें होंगे किंग क्वीन जैक, तो 3 and 3, 6 face card of the black color. So your favorable outcome is 6 and your total outcome is 52 and 52 आपका आ जाएगा डिनोमिनेटर में और 6 आ जाएगा न्यूमरेटर में, बिकॉज फॉर्मूला फॉर द प्रोबेबिलिटी इज व्हाट? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, सो इट इज 6/52। सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आ जाएगा। आई थिंक discussion regarding your probability is clear to you. On next video we will discuss about the questions related to probability.